बस यीशु में आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर दिल से नमस्कार। तो मेरे प्रियो, आज हम बात करते हैं कि परमेश्वर यदि घर को बनाए तो घर कितना सुरक्षित होता है, और यदि परमेश्वर घर को ना बनाए तो कितना असुरक्षित होता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 127 में लिखा हुआ है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे प्रियो। जब भी आप घर में इकट्ठे होते हो, अपने परिवार के बीच में इकट्ठे होते हो, तो घर में एकता जहां से आती है वो परमेश्वर की तरफ से आती है। यदि आप लोगों के घर में एकता नहीं है तो वो घर में परमेश्वर का वास नहीं है। मेरे प्रियो, आप सबसे पहले अपने घर को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो, यहोवा परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, ताकि आप लोगों का घर पूर्णतः सुरक्षित रहे। मेरे प्रियो, इस वचन को अच्छी तरह समझने के लिए आप ये वीडियो देखें। One day, Jesus visited this man in his house, and the man said, "Wow, welcome, karibu." And then he took him upstairs and gave him a room. He says, "From now on, this is your room, Jesus." And suit. So Jesus stayed in the room. The next day, the man had the doorbell ring. Ding dong. Ding dong. Then he went to open the door. When he opened the door, Satan was standing at the door. Jesus was upstairs. So he opened and Satan was there. So Satan started beating him. Beat him. Beat him. He was beating, stepping on him. When he finished beating, he left. Satan left. Say, "I'll be back." Remember, Jesus is in the house. So he woke up and went to Jesus. And said, "Jesus, how can I be beaten like this by Satan and you are in my house?" Then Jesus told him, "But you told me that I should stay in this room. This is the room you gave me." Then he said, "Oh, okay, take the whole of upstairs, Jesus. The whole of every room in upstairs is your room." And then Jesus said, "All right." Then the next day, Satan came again. And he rang the bell. Ding dong. Ding dong. And when the guy opened, and Satan beat him, took away his finances, took away his marriage, took away everything, beat him. This is how many of you, Satan is beating you, beating in your marriage, beating you in your finances, beating you in your health. And then Satan left, said, "See you tomorrow." And he closed the house with a key. Say, "Hey," then he ran back to Jesus. Say, "Jesus, even today Satan has beaten me." And Jesus said, "I'm sorry, but how can you not help me?" And Jesus said, "But you told me that where you have given me is upstairs. Upstairs only." Then the guy
got a revelation. He said, so I should give you the whole house. So Jesus, take the whole house. Take the key of the house. Give the key, yeah. And then he remained upstairs. Then the next day, the devil came. And he rang the bell. Ding dong. Ding dong. I mean, Satan is used to kicking you, beating you, making you unhappy, making you sick. So he is so happy. He is happy that today I'll show this boy. But he doesn't know that Vindu Vichenjanga. Ding dong. Then Jesus came and opened the door. When he saw Jesus, his knees began to shake. Before even being touched by Jesus, his knees were shaking. He started urinating on himself. Then Jesus said, today you will see Kung Fu. So Jesus took the devil and started hitting him. Put him down. Knocked him. Hit his stomach. His head. Hey. Sat on him. Jesus went to the corner. He said, I want to do now what we call finishing. What do you call it? Spear. So the devil was standing, beaten. Then Jesus came. And finished him. And they counted. 1, 2. And who became victorious? You became victorious. Shout with a shout of victory. Look at victory, victory. सबने वीडियो में देखा कि किस तरह एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने घर में जगह देता है और घर के बीच में एक कमरे में यीशु मसीह को बिठा देता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग यही तो कर रहे हैं। यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाने की बजाय अपने घर में बुलाते हैं और घर का एक कोना उसे थमा देते हैं। तो मेरे प्रियो, घर की पूरी कुंजियां क्यों नहीं यीशु मसीह को थमा देते? घर का पूरा हर एक कमरा यीशु मसीह के नाम क्यों नहीं कर देते? क्यों घर में यीशु मसीह की एक जगह अलग निकाल देते हो? मेरे प्रियो, यदि आज आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे हो और सही में लगा कि आपको कि ये सही है, तो मेरे प्रियो, आज आप लोग मसीह यीशु के नाम में होकर अपने घरों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में संपूर्णता दे दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके घर की सुरक्षा करे और आप लोगों के बीच में एक फैमिली मेंबर की तरह वह कार्य करे। क्योंकि वचन संहिता के अंदर जो हमने पढ़ा कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो घर को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो मेरे प्रियो, घर को बनाना, मेरे प्रियो, घर को बनाने का अर्थ यह है कि जब परमेश्वर का प्रेम हम लोगों के बीच में होगा तो परमेश्वर हमारे बीच में होंगे। और बाइबल में ये वचन भी लिखा हुआ है कि जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम में हाजिर होते हैं तो मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। मेरे प्रिय, ये वही प्रेम है, उसी घर की बात हो रही है। अपने घर को पूर्णतः प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए, ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर सके और आप पर किसी का किया कराया जादू टोना मंत्र कलाम शैतान की शक्तियां काम ना कर सके।
मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह बाहर खड़े हुए हैं, द्वार पर खड़े हुए हैं। आप लोगों के दिलों के जो दरवाजे हैं उनको वो खटखटा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज इस वीडियो से आपको यदि कुछ सीखने को मिला तो अपने दिलों के दरवाजे को खोल दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के घर में आए और आपके साथ बैठकर भोजन करें और आपकी संगति का वो अनुभव करें, और आप लोग प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का अनुभव करें कि वो आपके बीच में है। मेरे प्रियो, यदि आप लोगों को ये वचन अच्छा लगा है तो इस वचन को शेयर कीजिएगा और इस पे कमेंट कीजिएगा। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत से आशीष दे। आमीन।